اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، 20 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں، دعا کیا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا۔ آپ کی دعا مقبول ہوئی اور حضرت حاجرہ کے بطن اقدس سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت۔ میں نے اس تعلق سے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی اور یہ میں نے واضح کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گزار تشدد کیا، فرشتوں آگ کی خدمت کے چاروں طرف سے متعلق ہو گئے۔ نمرود کی بیٹی جس کا نام تاریخ کے رقفہ ہے، وہ نمرود سے کہتی ہے مجھے چھت کے اوپر جانے دو، گھر کے مکان کے اوپر جانے دو، میں دیکھوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ وہ جل کر خاکستر ہو گئے ہوں گے، انہیں اب دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن جب نمرود کی بیٹی رقفہ نے متعدد بار اصرار کیا تو نمرود نے کہا ٹھیک ہے، جا کر کے دیکھ کے واپس ہو۔ تاریخ میں ہے، مورخین نے کئی طرح لکھا ہے کہ جب نمرود کی بیٹی رقفہ بالائی خانے پر گئی تو کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت پر جلوہ ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، فرشتوں کی ایک پرانی جماعت حاضر ہے، نہریں جاری ہیں، دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود کی بیٹی رقفہ نے دیکھا تو اس کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہونے لگی، ایمان کی محبت گردش کرنے لگی۔ اس نے نمرود کی بیٹی رقفہ نے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتی ہوں۔ جس مذہب کے نشر و اشاعت اور تبلیغ آپ فرما رہے ہیں اس مذہب کو میں سویکار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر تم میرے پاس آنا چاہتی ہو تو تم کلمہ شہادت ابراہیمی پڑھو اور اوپر سے چھلانگ لگا دو تو میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جب ارشاد فرمایا تو نمرود کی بیٹی رقفہ کلمہ ابراہیمی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتی ہے اور چھت سے جب چھلانگ لگاتی ہے، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے فرشتوں نمرود کی بیٹی رقفہ کو میرے جلیل القدر پیغمبر اور میرے خلیل ابراہیم کے پاس فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا، ان کو کلمہ پڑھ کر کے شرف و اسلام ہو گئے۔ اب نمرود کی بیٹی رقفہ حضرت ابراہیم سے اجازت لے کر کے جب آ کر کے نمرود یعنی اپنے باپ سے پوری داستان بیان کرتی ہے کہ باپ جان جس مہینے کو جس آگ کو آپ نے 1 مہینے لگا دیے تیار کرنے میں، جس کی آگ کی تیزی چاروں طرف کے لوگوں کا رہنا مشکل کر دیا تھا، جس آگ کی تپش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ پرندے جل کر کے کباب ہو جایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم کے لیے آپ نے جلایا تھا، مگر وہاں تو کچھ اور نوعیت ہے، پورا آگ گزار کی شکل اختیار کر گیا، نہریں جاری ہو گئی ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی خدمت کے لیے فرشتوں کی پرانی جماعت لگی ہوئی ہے، کوئی پنکھا چل رہا ہے، کوئی خدمت میں حاضر ہے، کوئی عرض کر رہا ہے حضور کچھ حکم فرمائیے، اس طرح کا وہاں نورانی جماعت ہوئی۔ نمرود سے جب رقفہ نے بیان کیا تو نمرود نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو نمرود کی بیٹی رقفہ نے کہا جو دین اور مذہب کی نشر و اشاعت اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر نے کی ہے، میں نے اس کو سویکار کر لیا ہے، کلمہ ابراہیمی پڑھ کر کے ان کے دعوت سے وابستہ ہو گیا۔ نمرود نے اپنی بیٹی کو دفنانے کی بڑی کوشش کی،
बड़ी मेहनत की, पूरी ताकत सर्फ कर दी। नमरूद खुद जाकर के ऊपर से देखा तो वाकई इब्राहिम तख्त पर तलवा मारा। और नौयत ये है कि उठाए कुछ बरक लावा ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान। हजरत इब्राहिम को जब नमरूद ने देखा कि वो तख्त पर तलवार है, पूरा आग गुजार की शक्ल तैयार कर गया है, नहरें और नदियां जारी हो गई है, आपकी खिदमत के लिए फरिश्तों की नूरानी जमात हाजिर है, नमरूद सोचता है अगर मैं इनके मज़हब में गया तो मैं इस आबादी पे चेहरा दिखाने की खातिर मेरी बादशाहत मिट जाएगी, मेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी, लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। इस दुनिया पर आकर के अपनी बेटी को तसल्ली देता है, समझाता है पास आ जा, मगर जिसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पैदा हो जाती है, अल्लाह के जलील क़द्र नबियों की उल्फत पैदा हो जाती है, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत हिरासा नहीं कर सकती। नमरूद ने अपनी बेटी को तरह तरह की इज़ाएं दी, तकलीफें दी, मशक्क़तें दी, धूप पे फेंक दिया, रेत पे फेंक दिया, मगर वो अल्लाह की नेक बंदी रफ़ा हज़रत इब्राहिम के दामने करम से वापस आ गई। चुनांचे जब नमरूद की चारों तरफ से इस्माइल और जिल्लत और बर्बादी शुरू हुई कि देखिए नमरूद की बेटी रफ़ा ने खुद इब्राहिम के दामने करम से वाबस्ता हो गई। नमरूद जिसकी उम्र तकरीबन 1000 बरस की थी, कमोबेश 300 बरस तो उसके ऐसे गुजरे जिन अय्याम में वो कभी बीमार नहीं हुआ, इसलिए उसने खुदाई दावा कर दिया। अब जब उसने खुदाई दावा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए तबाही और बर्बादी की रास्ता के दरवाजे खोल दिए। अब हुआ ये कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। हजरत इब्राहिम को जब नमरूद ने आग में डाला, अपनी बेटी रफ़ा को हिरासा किया, परेशान किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमरूद की तबाही और बर्बादी के लिए सिर्फ एक लगड़े मच्छर को पैदा, और वो लगड़ा मच्छर हजरत इब्राहिम के अंदर नाक के जरिए से दाखिल हुआ। अब वो परेशान होने लगा कि वो मच्छर जब नाक में दाखिल हुआ, सर में नाना जब फिर करता चलता तो नमरूद का सर तक परेशान होता। उस वक्त जितने माहिर अतिब्बा, तबीब, डॉक्टर मौजूद थे, नमरूद ने सबसे इलाज कराना शुरू कर दिया। जो इलाज कराता जाता यूं उसका दर्द बढ़ता चला जाता। जैसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता, इलाज जारी होता, उधर दर्द बढ़ना शुरू होता। एक माहिर तबीब था, गालिबन वो डॉक्टर साहब नमरूद के जुल्म और सितम से वाकिफ थे। लोगों ने कहा नमरूद बादशाह भला डॉक्टर साहब हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। नमरूद ने कहा बुलाया जाए। अब वो हाजिर हुए तो नमरूद ने अपनी पूरी कैफियत बयान की कि मेरा सर बहुत दर्द करता है। तो वो डॉक्टर जो थे नमरूद के जुल्म और सितम, उसकी बर्बरियत से वाकिफ थे कि ये कितना जुल्म इंसानों पर कर रहा है, किस कदर ये लोगों को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश में रहता है, लोगों को निराशा करता है, लोगों को मशक्कत में डालता है। इसलिए उस तबीब साहब ने कहा आपका दर्द तो मैं खत्म कर दूंगा, मेरे पास है एक आइडिया, दिमाग, जिसकी बुनियाद पर आपके सर का दर्द कम हो जाए। नमरूद ने कहा बताइए जितनी कीमत कहिए उतनी मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मेरे सर का दर्द आप खत्म कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कीमत की कोई जरूरत नहीं है, एक चमड़े का जूता लाया गया और उसी जूते से आपके सर की मालिश की जाएगी, आपके सर का दर्द कम हो जाएगा। चुनांचे नमरूद ने हुक्म दिया चंद लोगों को मुंतखब करो, उनकी ड्यूटी लगाओ जो हमारे सर में इस जूते से मालिश करें। जब जूता लाया गया और नमरूद ने हुक्म दिया, अपने मुलाजिमीन को ड्यूटी लगी, एक साहब लेकर के जब जूते से नमरूद के सर पर ठपकाना शुरू किया तो मच्छर जो था वो एक किनारे बैठ गया।
उनके सर का दर्द कम। तो नमरूद ने कहा ये बहुत अच्छा तबीब है, बड़ा माहिर डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। अब जब जूते की का मारना बंद कर दिया जाता, फिर वो मच्छर उठ के भनभनाना शुरू करता, फिर उसके दर्द सर में दर्द शुरू हो जाता, फिर जब जूते से जब उसके सर की मालिश की जाती, फिर वो मच्छर एक किनारे बैठ जाता, फिर सर का दर्द खत्म। इस तरह इतने उसके सर पर जूते से मालिश हुई कि उसका सर फट गया और वो हिला और बर्बाद और तबाह हो गया। ये हजरत इब्राहिम अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म किया, उस जालिम की सजा ये मिली कि उसका सर फट गया और वो तबाह हो गया। हजरत इब्राहिम जब बाबिल से शाम की तरफ हिजरत फरमाए तो उस वक्त आपके साथ में आपकी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी और मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम और जाबिर और फासिक बादशाह था। उसने हर चौराहे पे अपने मुलाजिमीन को मुंतखब करके दिया था कि जो भी इस शहर से गुजरे उसके साथ में अगर बच्चियां औरतें लड़कियां हो तो सबसे पहले हमारे हुकूमत को पेश की जाए। उस जालिम का ये कानून था, दस्तूर बना रखा था कि अगर गुजरने वाले के साथ में औरतें होती और उन औरतों में बादशाह नमरूद और उन बादशाहों को अगर वो औरतें लड़कियां पसंद आ जाती तो वो रख लेते थे, वरना उसके बाद उन्हें वापस कर दिया करते थे। हजरत इब्राहिम जब गुजरे तो आपके साथ में हजरत सारा थी जो हुस्न जमाल की मंबा थी, हुस्न जमाल की पैकर थी, निहायत ही खूबसूरत। जब बादशाह के मुलाजिमीन ने देखा कि हजरत इब्राहिम के साथ में एक खूबसूरत औरत है, अच्छी है, लड़की है, बादशाह को इत्तला दी गई कि आलिजा एक गुजरने वाला गुजर रहा है, उसके साथ में एक खूबसूरत औरत है। बादशाह ने कहा उनको गिरफ्तार करके मेरे रूबरू पेश किया जाए। हजरत इब्राहिम और हजरत सारा को जब बादशाह के रूबरू पेश किया गया तो बादशाह पहली ही नजर में हजरत सारा पर फरेफ्ता हो गया। उसके बाद हजरत इब्राहिम से पूछा ये रिश्ते में आपकी क्या लगती हैं? तो हजरत इब्राहिम की जो वो बीवी थी, आपने सोचा अगर मैं बीवी बताता हूँ तो सुनना करे, इसलिए आपने कहा कि ये मेरे रिश्ते में बहन है, ये सोच करके कि बहन का लिहाज करके ये लिहाज करके छोड़ दे। मगर हजरत इब्राहिम ने जब बहन बताया फिर भी बादशाह हजरत इब्राहिम के साथ खिचड़ी को लेकर जाते, हजरत सारा को एक कमरे में लेकर के गया। अल्लाह की मशीयत देखिए, अल्लाह के नबियों और पैगंबरों की शान देखिए। जब वो बादशाह हजरत सारा को कमरे के अंदर लेकर के गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कमरे को पिछले शीशा कि बादशाह और सारा कमरे के अंदर है, इब्राहिम बाहर है, मगर अंदर के हालात देख। बादशाह ने गलत इरादे से अपने हाथ को उठा करके सारा की तरफ बढ़ाना चाहा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाह के हाथ से ताकत को खत्म कर दिया, उसका हाथ शल हो गया, उठने के लिए तैयार। बादशाह ने हाथ जोड़ा, माफ कर दीजिए, अब मैं आपकी तरफ गलत इरादे से हाथ नहीं उठाऊंगा, मिन्नतों समानत करता है। हजरत सारा अल्लाह की नेक बंदी है, एक नबी की बीवी है, उनकी दुआ कहाँ रखूं? उन्होंने परवरदिगार की बारगाह में दुआ फरमाई, माफ किया, उसका हाथ फिर ठीक हो गया। तो उस बादशाह ने सोचा यूं ही झटका लग गया होगा, वहम हो गया होगा, इसलिए उसने फिर दोबारा गलत इरादे से जब हाथ को हजरत सारा की तरफ उठाना चाहा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ से ताकत को खत्म कर दी, उसका हाथ शल हो गया, हो गया। बादशाह हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, माफ कर दीजिए, ये आखिरी बार है, माफ कर दीजिए। अल्लाह की नेक बंदी थी, बंदियों को और अल्लाह के नबियों को मौजज़ा दिखाना था, माफ की। तीसरी मरतबा फिर गलत इरादे से हाथ उठाता है, ये सोचकर कि यूं ही हो गया होगा, बस सजा था, बहन था। तीसरी मरतबा जब हाथ उठाने की कोशिश करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ उठाकर खत्म कर दिया, फिर उसका हाथ शल हो गया, सुन हो गया, उठने के लिए तैयार नहीं। फिर उसने बिन्नत समाजत की, माफ और पुख्ते इरादे से तौबा इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह की नेक बंदी माफ करती है। और जब कमरे से बाहर आए तो अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हज़रत इब्राहिम से बादशाह माफी मांगता है और अर्ज़ करता, हुज़ूर मैं आपकी
सारा से इस कदर खुश हूँ कि अल्लाह की नेक करती है, मकबूल बनती है, इनका मकाम व मर्तबा बुलंद है। इसलिए मैं इनकी खिदमत के लिए अपनी एक लोड़ी जिनका नाम तारीख में हजरत हाजरा है पेश करती हूँ, ये इनकी खिदमत के लिए है। चुनांचे हजरत इब्राहिम, हजरत सारा और हजरत हाजरा को लेकर के जब अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचे तो हजरत सारा ने कहा मुझसे कोई औलाद नहीं। इसलिए इब्राहिम मैं अपनी लोडी हजरत हाजरा को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जब हजरत इब्राहिम की खिदमत में हजरत सारा को पेश किया, अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हजरत इब्राहिम ने रब की बारगाह में दुआ की, 20 साल हो गए कोई औलाद नहीं। दुआ किया रब्बि हब ली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक औलाद दे। आपकी दुआ मकबूल हुई और हजरत हाजरा के बदले अक़दस से अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की विलादत बसारत। आगे हमारे इंशाअल्लाह इस से आगे के वाक़यात को बयान किए जाएंगे। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना कहला